So this is what I wanted to show you guys, my Polaroid pictures. Yummy, delicious yaar. Hi cuties, it's Yashita and welcome back to another vlog. This is going to be a random day in my life vlog क्योंकि आज मुझे ऐसे ही कैमरा उठा के आप लोगों से बातें करने का मन था. So here I am. So we are finally back from Goa and इतनी ज़्यादा प्यारी ट्रिप थी यार, मैं क्या बताऊँ. I feel super refreshed and ऐसा हमेशा होता है जब भी किसी वेकेशन से वापस आओ तो बहुत सारा पेंडिंग काम हो जाता है and that is exactly what I'm gonna be doing today. अभी जो मुझे सबसे पहले काम करना है वो है that I have to unpack my suitcase. कल रात में जब मैं आई नहाने के बाद मैं सो गई थी एंड अगर मैंने ये अनपैक करके कपड़े लॉन्ड्री में नहीं डाले तो मुझे मम्मा से बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी. चलो सबसे पहले ये कर लेते हैं. Yes, adore you all of the time. I like to. इतनी हंसी आ रही है ना क्योंकि गोवा में लिटरली ऐसे कपड़े पहने जा रहे थे एंड दिल्ली में आके देख लो भाई जो ठंड लगी है ना. सो गाइस, डू यू थिंक कि मैं हल्की सी भी टैन हुई हूँ कि नहीं? मुझे तो लग रहा है मैं हो गई हूँ टैन. आई रियली विश हो गई हूँ क्योंकि इतना धूप में बैठी थी, पर ऐसा लगना भी चाहिए यार कि वेकेशन से आए हैं. बट यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं. गाइस तो चलो हमारा एक काम तो पूरा हो गया है एंड जब मैं अपना लगेज अनपैक कर रही थी आई फाउंड दिस बिग पैकेट एंड उसमें वो सारा सामान है जो मैं गोवा से शॉपिंग करके लाई हूँ. एंड मैंने आपको गोवा व्लॉग में बताया भी था कि इसका हॉल मैं किसी और व्लॉग में करूँगी, तो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, तो आप आगे तक बने रहना. एंड या अगर आपने गोवा व्लॉग अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट. इट इज़ लाइव ऑन माई चैनल एंड प्लीज़ शो सम लव देयर. अभी जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे हैं मैं भी जाती हूँ अपने आप को धो लेती हूँ. आई रियली नीड टू फिक्स माई हेयर. आई नीड टू वॉश माई हेयर टुडे. एज यू कैन सी दे ड्राई हो रहे हैं, बहुत रफ से फ्रिजी से हो रहे हैं. आई नीड टू फिक्स दैट, सो आई एम गोना गो अहेड एंड डू दैट एंड देन आई एम गोना सी यू गाइज इन अ बिट. ओके गाइज, सो आई एम बैक फ्रॉम द शावर एंड आई फील all fresh and clean and just look at my hair. It feels super smooth. So actually for the past few days my hair has been super frizzy and dry and especially due to my vacation and जितनी भी मैंने बीच पे जाके डिप लिया है मेरे बाल उतने ही रफ और ड्राई हो गए थे. But I want to share with you guys my new hair care regime and how I have been dealing with my frizzy hair. I have been using Biolash Smooth Proof, which is a professional deep smoothing 6-in-1 serum. I have been really loving the serum. It makes my hair look so much better. So it actually contains avocado, grapeseed oil, which helps to give your hair that shine, and at the same time it strengthens your hair, nourishes your hair and also protects your hair from split ends. Talking about the texture of the serum, I absolutely love the texture. It is very non-greasy and it doesn't weigh your hair down. It is very light. When you apply it on your hair, it detangles your hair and instantly gives you that shine, which I really love. So the correct way of using a serum is that you should take a small amount on your palm and then you should apply it all over your length just by running your fingers through it and applying it evenly throughout. Always make sure that you apply the serum from your mid length till your ends and do not apply it on your scalp. So the Biolash Smooth Proof Serum has 6-in-1 benefits. It controls your frizz, smoothens rough ends, protects your hair from humidity and adds instant shine. It also nourishes dry hair and instantly detangles your hair. In fact, I have been using the entire Biolash Smooth Proof range. Along with the serum, I have also been using the shampoo and the conditioner. The shampoo and conditioner contains camellia, which helps with the frizzy hair problems, and you can use this entire range for the best results. Coming back to the serum, you can literally use it in multiple ways. So you can use it before blow drying your hair to protect it from heat damage. You can also use it after blow drying your hair to give your hair that shine. You can use it for party styling, after shower and also while traveling. You can carry this in your bags and you will be good to go. It's super handy, so you can literally use it anywhere. So now coming to the price and the quantity of these products. The serum is for rupees 300 and you get 100 ml. Shampoo is for rupees 400 and you get 400 ml, and the conditioner is for rupees 335 and you get 196 grams of product. Also guys, all of these products are paraben free and I would highly recommend you guys to use Biolash range for healthy looking, smooth and frizz free hair. And I'm going to be leaving all the links and the details in the description box down below so you guys can check it out for yourselves.
तो नहाने के बाद मैं ना अपने बालकनी में बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में, एंड अभी मैं नारियल पानी पी रही हूँ। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन ही है। अब तो विंटर्स भी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी, तो अब ये लास्ट की जो विंटर की धूप है इसको इन्जॉय कर लो आप सब भी। ऑल्सो गाइज मुझे बताना था कि पापा घर आ चुके हैं, मैं आपको बताना ही भूल गई ये बात। जिस दिन हम गोवा से आए हैं रात में, उसी के 1-2 घंटे के बाद पापा रांची से लैंड हुए हैं। अभी यहाँ पे किसी काम से आए हैं, अभी वो घर पे हैं भी नहीं, वो निकल गए उस काम के लिए। बट या वी आर रियली हैप्पी। मम्मा बहुत खुश होती है, दादी बहुत खुश होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई ट्राई टू कैप्चर हिम इन द व्लॉग। अगर वो फ्री होंगे तो आ जाएंगे, अगर उनके पास बहुत काम रहेगा तो बोलेंगे जाओ यहाँ से भागो। अभी मॉम भी तैयार हो रही है, मुझे और मॉम को निकलना है बाहर किसी काम से। कहाँ जा रही हूँ मैं, आई लेट यू नो जब हम कार में बैठेंगे। घर से निकल गए हम। वी आर गोइंग टू नोएडा एक्सटेंशन क्रॉसिंग के साइड। वहाँ पे लोकल फर्नीचर मार्केट है, एंड वैसे ही मुझे चीज़ें देखनी है। आई डोंट वांट टू बाय वेरी एक्सपेंसिव फर्नीचर, मुझे थोड़ा अफोर्डेबल फर्नीचर ही लेना है। एंड ये फर्नीचर वगैरह क्यों ले रही हूँ मैं आपको थोड़े दिनों के बाद पता चल ही जाएगा। अभी जब ठीक है मैं बाद में ही बताऊंगी। अभी आपको अच्छा खासा बड़ा सा हिंट तो दे ही दिया है मैंने, बट स्टिल थोड़ा सा और वेट कर लो। एंड आई रियली होप मुझे अच्छा फर्नीचर मिल जाए। यू गाइज नो माई एस्थेटिक, मुझे बहुत अलग टाइप की चीज़ें पसंद आती हैं यार, तो देख के आ रही हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लेना ही लेना है। आज हम विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं। अगर कुछ पसंद आ गया तो हो सकता है ले भी लें, अगर नहीं आया एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ कैसी चीज़ें मिलती हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जस्ट एंटर किया है मार्केट, एंड मुझे तो अभी काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा सस्ता हम पहली बार आए हैं साल में, तो मैंने कभी ऐसे लोकल फर्नीचर मार्केट कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। लिटरली लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड होपफुली कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर मिलेगा तो मैं ऑर्डर करके ही जाऊंगी आज। ऑल्सो गाइज लुक एट मॉम्स कुर्ती, ये उनकी बहुत पुरानी कुर्ती है। कितने साल पुरानी कुर्ती है? 10 years। और ये मुझे बचपन से इतनी ब्यूटीफुल लगती है, मैं क्या बताऊँ। इसको मैं भी एक दिन पहनूंगी। इसके ऊपर इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, एंड दिस इज इन कॉर्डरॉय। बनवाई थी। हाँ ये अलग से बनवाई थी, एंड दिस इज इन कॉर्डरॉय मटेरियल विच आई रियली लव। आप पे तो बहुत प्यारी लगती है कुर्ती। एनीवेज चलो फर्नीचर देखते हैं। निकल रहे हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आइडिया ले लिया है कि क्या क्या मिल सकता है। अब देखो जैसा मुझे एग्जैक्टली चाहिए कलर वो सब तो मुझे मिलेगा नहीं, वो ऑर्डर पे ही मिलेगा। तो मैं कार्ड वगैरह लेके आ गई हूँ, जब मुझे फाइनल करना होगा तो मैं कर लूँगी। पर मैं काफ़ी खुश हूँ, मुझे अभी थोड़ी ऐसी उम्मीदें आ रही है, एक्साइटमेंट हो रही है कि हाँ मुझे जैसा जैसा चाहिए मुझे मिल जाएगा। अब हम जा रहे हैं घर, अब मैं आपसे मिलती हूँ घर जाने के बाद। गाइस सो वी केम बैक होम, मतलब अभी नहीं 3 घंटे हो गए हैं। राइट नाउ इट इज़ 6 PM, एंड मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, कुछ काम में लग जाती हूँ फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि व्लॉग भी करना था। तो अभी याद आया तो मैंने अपना कैमरा उठा लिया। सो या आई एम हियर अगेन। हाय गाइस, एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू गाइस समथिंग। वेट, so this is what I wanted to show you guys, my Polaroid pictures from our trip. Literally अभी तक मैं गोवा की यादों से बाहर नहीं आ पाई हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ यही शेयर कर लूँ। सो हियर इज़ द फर्स्ट पिक। जब हम घर से निकल रहे थे तो मॉम ने ये मेरी क्लिक करी थी मेरे लगेज के साथ, एंड ये वाली हमारे रिजॉर्ट के बाहर की है, मुझे बहुत पसंद आई थी। दिस वन इज़ इन फ्रंट ऑफ अ रैंडम हाउस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का हाउस था, एंड मैंने मम्मा से बोला इसके आगे मेरी फ़ोटो खींच दो। एंड दिस वन इज़ अ काइंड ऑफ अ पोलरॉइड फेल, एज यू कैन क्लियरली सी। सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी तो ब्राइट सनलाइट में ये वाइट हो गई है फ़ोटो, बट मेरे आउटफिट के कलर्स बहुत वाइब्रेंट दिख रहे हैं। सो या दिस इज़ इन front of the beach, and this is with one and only Mamzu. एंड या ये हमारा निकलते निकलते वहाँ के एम्प्लॉय ने खींचा था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा खींच दिया है बट इट्स ओके। एंड दिस वन इज़ द लास्ट पिक्चर। कैमरा फोकस ही नहीं लेता है मेरा, ये भी किसी घर के बाहर की ही थी। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कहीं से घूम के आती हूँ ना किसी भी जगह से, मुझे 3-4 दिन मैं वहीं के मेमोरी में रहती हूँ, वहीं की याद आती रहती है मुझे। एंड या ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह देख के मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। आई एम गोना स्टिक देम इन माई जर्नल लेटर, बट उससे पहले आई हैव टू शो यू गाइज कि मैं गोवा से क्या क्या शॉपिंग
करके लाई थी एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू गाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो हियर इज़ माई लिटिल पोटली एंड इसी में मेरा सारा सामान है जो भी मैं गोवा से लेके आई हूँ. एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ की कि वो कोई भी पॉलीथिन बैग्स में नहीं दे रहे थे, इससे रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स में सामान दे रहे थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड अब मैं इसमें से सारा सामान ऐसे बेड पे सजा के रख देती हूँ एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ. तो फर्स्टली आई गॉट दीज ब्रेसलेट्स फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स. जब भी कहीं बाहर जाते हैं हम लोग कुछ ना कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स ले आते हैं एज सुवेनियर्स फॉर आवर ग्रुप. मैंने सबके लिए ऐसे अलग अलग कलर का लिया है. होपफुली उन्हें पसंद आएगा. मुझे तो काफ़ी सुंदर लगा जब हाथ पे पहनूँ तो ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था. सो या आई गॉट दिस एंड ये बहुत सारे आपको लोकल स्टॉल्स में मिल जाएगा. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस टीनी टाइनी शॉर्ट्स. बहुत ही प्यारे वाइब्रेंट पिंक कलर में एंड इसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रिंट था. ये मैंने दूर से ही देख लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसको तुरंत ले लिया. जो सारा मैं गोवा हॉल आपको दिखा रही हूँ वो सारी शॉपिंग मैंने पैलेलम बीच मार्केट से की थी, तो वहीं से मैंने सारी चीज़ें ली हैं. एंड या ये शॉर्ट्स मिले मुझे, काफ़ी क्यूट है. आई गॉट एंड ये तो सबको ही पता है, मुझे बहुत दिनों से चाहिए था. आई वॉन्टेड दिस टर्कोइज पेंडेंट एंड ये मैंने लिया है एक रियल हैंडीक्राफ्ट स्टोर से. ये भी लोकल स्टोर्स में मुझे टर्कोइज पेंडेंट नहीं मिल रहा था, ऐसे ब्रेसलेट्स थे, तो ये मैंने रियल स्टोन का लिया है. सो दिस इज रियल टर्कोइज स्टोन एंड रियल सिल्वर एंड ये बहुत प्रिटी है एंड जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मिल गया. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट. आई गॉट दिस ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग एंड ओ माई गॉड आप देख सकते हो ये एकदम मेरे एस्थेटिक वाली चीज़ है. एंड वहाँ पे मुझे एक बहुत सुंदर शॉप दिखी थी जहाँ से मैंने लिया. एंड या इस पे पूरा हैंड वर्क किया गया है एंड ये पूरा लेस डिटेल्स एवरीथिंग इज सो सो ब्यूटिफुल. तो मैं किसी अच्छे वॉल पे लगाऊंगी, आई थिंक वो वॉल एकदम सुंदर हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव हियर इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड सो यूनिक. जस्ट लुक एट इट. दिस इज अ स्टील मग दैट आई गॉट एंड इसके ऊपर हैंड पेंट किया गया है. सो आई गॉट दिस फ्रीडा वन एंड जस्ट लुक एट द डिटेल्स. ओ माई गॉड दिस इज सो ब्यूटिफुल. एंड इस पैटर्न में शायद उस शॉप पे सिर्फ एक सिंगल मग ही बचा था तो मैंने ले लिया. एंड इसका इतना प्यारा क्रीम वाइटिश पूरा बेस है, पिंक डिटेल दिए हुए हैं, तो ये मतलब मुझे लग रहा था मेरे लिए ही बचा है. सो या आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस. नेक्स्ट आई गॉट दीज शेड्स एंड ये मैंने ब्लू कलर के शेड्स लिए थे. आपने अगर मेरा गोवा व्लॉग देखा है तो आपने मुझे इसको पहने हुए भी देखा होगा. एंड आई गॉट दिस ओनली फॉर 100 रुपीज़. वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी पर मेरे पास ऐसे ब्लू शेड्स नहीं थे तो मैंने ले लिया क्योंकि मेरे आउटफिट्स के साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे. स्टेप समथिंग जो सब लोग लेते होंगे अपने लिए भी, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी, तो मम्मा ने भी लिया है. आई एम जस्ट शोइंग यू वन पीस. सो वी गॉट दिस फ्रिज मैग्नेट एंड इसके ऊपर लिखा है पैराडाइज गोवा. तो हम लोग जहाँ रुके थे उसका नाम भी पैराडाइज था, इसीलिए हमने ये लिया है. नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस रियली नाइस हैंडमेड डायरी. नाउ अगर आप मुझे थोड़े टाइम से फॉलो करते हो या आप मुझे थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि मुझे डायरीज और नोटबुक्स का कितना ज़्यादा शौक है. मैं हमेशा कलेक्ट करती रहती हूँ. सो या आई गॉट दिस. द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू गाइज जो गोवा से मैंने नहीं लिया है पर मैंने गोवा जाने के लिए ही लिया था पर टाइम पे नहीं आया. बट एनीवेज आई वांट टू शो यू इज दिस मैक्रेमे बैग. एंड मुझे बैग का अलग ही शौक है तो ये मैंने देखा था कि उसको मैं किसी नेक्स्ट वेकेशन पे लेके जाऊंगी ज़रूर. इसका साइज सब कुछ बहुत अच्छा है एंड जस्ट लुक एट इट, इट्स सो यूनिक, सो ब्यूटीफुल. ओके गाइज, सो दैट वर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम गोवा एंड आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस मिनी हॉल. एंड अभी चलते हैं किचन में. आई वॉन्ट टू शो यू गाइज कि मम्मा क्या बना रही है आज. यहाँ पे मम्मा डिनर की तैयारी कर रही है एंड कर ही लिया उन्होंने. ये बना रही है मम्मा मंचूरियन आज और ये उन्होंने उसकी पूरी प्रिपरेशन कर ली है. सो बनाते हो आप इसको जल्दी जल्दी बता दो. इसमें मैंने फूल गोभी घिसी है, गाजर, शिमला मिर्च और हरा लहसुन. ओके. फिर उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के और नमक डाल के. और वैसे ये कैबेज के बनते हैं ना. हाँ, पर आप इसको कॉलीफ्लावर का बनाते हो. थोड़ा हेल्दी होता है इसलिए. हाँ. और फिर आप इसको शैलो फ्राई करके चाइनीज ग्रेवी बनाओगे. हाँ. एंड यहाँ पे मम्मी ने फ्राइड राइस की भी तैयारी कर ली है. बस इसमें जो मटर डाले गए ना ये मुझे कतई पसंद नहीं है. नेक्स्ट चाइनीज के साथ ये मटर कौन डालता है? पापा है ना, पापा हाँ को बस पसंद मेरे है. पापा को पसंद है इसीलिए फिर ठीक है चलो. ढाबा खोल लेती मैं तो सही रहता ना. खोल लो ढाबा खोल लो, मेरा ही फायदा होगा. मैं ही आपके ढाबे में आऊंगी रोज खाने. बिना पैसे. और क्या आप मुझसे पैसे लोगे? ढाबा खोलूंगी तो लूंगी. मैं आपका प्रमोशन करूंगी. ठीक है, कोलैबोरेशन करेंगे हम. हमारी और सारी क्यूटी फ्रेंड्स को फ्री. ये अच्छी बात है. फिर अगर कोई आके बोलेगा हम क्यूटी फैम के मेंबर है तो फ्री. ऐसे आप लॉस में चले जाओगे. कोई बात नहीं.
ओके तो यहाँ मम्मी की चाइनीज सॉस ग्रेवी स्टार्ट हो गई है बनानी उसका सॉस। तो यहाँ इसमें आपने क्या क्या डाला है? फ्रूट, सोया सॉस, चिली सॉस। तो यहाँ पे मॉम ने सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं, अनियन, कैप्सिकम और क्या है, गार्लिक एंड स्टफ लाइक दैट। तो चाइनीज़ वाला जो अच्छा फ्लेवर है वो आएगा। एंड इसी के अंदर जो सॉस डाला था वो मम्मा इसमें कुक करेंगी। जब सॉस थोड़ी थिक हो जाएगी तो मंचूरियन बॉल्स ऐड करेंगे एंड प्रिपेयर हो जाएगा। यम्मी डिलिशियस यार। आपका जल्दी जल्दी वाला भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का लग रहा है यार। डिनर इज सर्व्ड। आई एम सो हैप्पी। एकदम गरम गरम है। एज यू कैन सी इसके ऊपर से धुआं निकल रहा है। नमक ठीक है, देखना। परफेक्ट है, बहुत यम्मी है। गाइस तो डिनर हो चुका है। अब मैं अपने फैमिली के साथ लेट के कोई शो देखने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू बी एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ऐसे ही रैंडम डे इन माई लाइफ व्लॉग्स पसंद आते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं ऐसे व्लॉग्स और बना पाऊँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर देना। एंड या गाइस अपना ध्यान रखो एंड आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।